Now let's start with this work in progress thing and have a little fun with it. So going ahead from here, today we discussing para summary of slot 1 and slot 2. Now you already know that when you talk about para summary, there are how many questions on para summary? 3 to 4. Para summary, how many questions are there in CAT? 3 to 4 Any questions. idea? Yeah, 3 to 4 questions. 3 to 4 questions. Yes. And last year we saw 3 questions in each slot. So there are about 6 questions that we will be discussing today. So naturally, the session could be shorter than the usual. Let us get into the basics of para summary before we start solving the questions. Because if we know nuts and bolts of this, it'll be easier for us to fix it up. So para summary, why is it important? Why is it important to be able to produce a summary of a paragraph? Or that you would get questions that would say which of the following statement best captures the essence of the given paragraph. So why is this ability required? Why are you required to do this particular activity, that is have an extract of a given paragraph? Okay, the reasons would be time and ability, both. Now what happens is, if you are representing an organization for a meeting, it could be a national or an international conference. Now that could be running for an entire day. So there is something called minutes of meetings. So when you talk about minutes of meeting, what you generally do is you extract all the important things that were discussed and you would be able to present that in a coherent manner. Similarly, when you go and represent your company in some bigger conferences, and when you come back to the company and when management asks you what exactly happened there, you should have this ability to consolidate everything and present it in the most understandable and a simple form. That is one thing. The other thing is time constraint. Now time constraint is in the sense कि कोई चीज अगर आपने 3 घंटा की है तो ये जरूरी नहीं होता कि आप 3 घंटे का नरेशन दोगे. So naturally, can you sum it up in about say 15-20 minutes is what would be seen. Say for example, we've been sharing book reviews with you guys. Now the kind of time it takes to go through one book, that is read one novel, could be anything between 5 to 50 days. I hope I am correct when I am saying 50 days, or maybe 5 to never. Kind of a situation can also be there. So you start with a book and that never finishes in your life. So the idea is that there is a huge time that you would take to complete one particular book. But if I ask you, okay, what is it that you find interesting? What is it that is there in that particular book? Then the narration that you would give me in that another 5-10 minutes is what would be called the summary of the book. ये book में ये सारी चीजें हैं. So you are trying to sum it up. तो समरी क्या होती है कि जो एक बड़ा मुद्दा होता है, जो एक बड़ा डिस्कशन होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग. और ये क्वालिटीज एक अच्छे मैनेजर में होनी चाहिए, एंड दैट्स द रीजन दे आर असेसिंग द स्किल्स इन यू. ठीक है. सो टाइम एंड एबिलिटी, ये दोनों यहाँ पे चेक किए जाते हैं. दूसरा है प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए आपके डिस्कशंस. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वॉच अ मूवी, how many instances do you recollect that either you have narrated the story of a movie or you've asked your friend to narrate and that you've been listening to it? हुआ है ऐसा कभी कि हाँ ठीक है, आपस में हमने एक्सचेंज किए ऐसे कॉन्वर्सेशंस कि मूवी की स्टोरी हम सुना रहे अपने फ्रेंड्स को या हम सुन रहे उनसे? We do that, right? Yes. Correct. इसमें Yes, sir. कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई फाइट सीन है और आपके फ्रेंड ने आपको इस डिटेलिंग में बताया कि फिर वो विलन आता है दौड़ के और वो मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ते आता है और रजनीकांत कैसे एक बुलेट
शूट करता है और बीच में चाकू डाल के उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता है, स्टफ लाइक दैट. Now only if there is an interesting sequence like this, if there is this Rajinikanth stunt to be discussed, I am sure you'll get into details of saying ki kya hua. But if it's a general fight scene, nobody would actually go about narrating कि उसने एक पंच मारा तो इसने 2 पंच मारा तो उसने लात मारा तो इसने घुसा मारा and stuff like that. Nobody would do that, right? So what is the narration of that 10-minute sequence is that then there is this fight that happens between the hero and the villain and who wins at the end. ठीक है, वो उन दोनों के बीच में फाइट होता है और ठीक है वो उसको मार देता है. So this is how it is narrated. Similarly, when there is a song that appears on a screen, your friend would not actually sing and dance and show you that how that song was, right? Would only say हाँ फिर उसके बाद में वो दोनों हीरो हीरोइन गाना गाते हैं and then what happens is that is how my story progresses. So exactly यही चीज हमको भी यहाँ देखनी है कि कुछ चीजें होती है जो डेकोरेट करने के लिए होती है, ठीक है, कोई चीजें होती है जो एम्फोसिस के लिए होती है. तो ये चीजों को हम ऐड करें जरूरी नहीं, मेरा एक सेंट्रल मुद्दा जो होता है वो आना जरूरी है. और इसीलिए जब हम बोल रहे हैं प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, तो मुझे समझना पड़ेगा एक सेंट्रल थीम क्या है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. So always develop that ability to look at every paragraph from a perspective that what is the central theme that this paragraph is presenting. वो मेन मुद्दा आपकी समरी में आना चाहिए, ठीक है. आगे एग्जाम्पल्स, जैसे कई सारी चीजें होती है जहाँ पे हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन करते हैं, देन वी मेंशन और वी स्टेट सर्टेन एग्जाम्पल्स. व्हाई डू वी स्टेट एग्जाम्पल्स? To prove our point. Elaborated for the idea For further. Yes. Yes, you want to take that idea for better further understanding. Yes, for better understanding, for establishing that idea as in a fact and stuff like that. So what we generally do is we put examples there. पर ये एग्जाम्पल को ऐड करने से जो एक ओरिजिनल आइडिया डिस्कस हुआ वो हमारा मेन मुद्दा है जो हमको डिस्कस करना है. आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो तो एम्फसिस बढ़ाने के लिए है, बट जब मुझे ये जानना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ तो वो एग्जाम्पल कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मुद्दा क्या डिस्कस हुआ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देयरफॉर जब आप समरी प्रेजेंट करोगे तो आप एग्जाम्पल्स को उसमें से स्किप करोगे, बड़ी कंफर्ट के साथ में आपको उसको ड्रॉप करना है एग्जाम्पल्स को. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गिव यू अ स्टेटमेंट दैट सेज Indian banking sector has been suffering during this lockdown period, including banks like HDFC, SBI, ICICI, etc. Now here, this example of these bank names, the names of the banks are the examples. So the crux of the entire thing here is that the banking sector is suffering, and naturally banking sector mein who are the participants? The banks are the participating entities. So banks are the participating entities and banking sector is suffering. That would be my summary basically, but I would not go ahead and mention it is HDFC, SBI, ICICI and likes that are also suffering. That is not required. So examples आपके हमेशा skip हो जाएंगे, summary में कभी भी एग्जाम्पल नहीं आएगा. That's for sure that you have to observe. और ये सबसे आसान तरीका होगा आपके लिए when you want to really check one of those options. अरे इसमें तो इसने एग्जाम्पल भी दे दिया तो डेफिनेटली ये हमारा आउट हो जाएगा. एक ऐसा कहीं ना कहीं एक फास्ट अप्रोच आप रख सकते हो उसमें. न्यू आइडियाज, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर व्हेन यू रीडिंग अ पर्टिकुलर पैराग्राफ you start thinking ahead of what author is telling you कि भाई हाँ ठीक है अभी ये सब हो गया तो इसके आगे what next is, what this is likely to happen. When those ideas are found in the summary, you think that these are synchronous ideas with your given paragraph, but what we need to remember here is that I am not taking this particular paragraph forward. My idea is to see what has been mentioned is what I need to summarize. और इसीलिए इसमें नया कोई भी आइडिया आ नहीं सकता. You cannot include a new point when that has not been mentioned anywhere in your paragraph. So कोई भी नया point यहाँ पे नहीं आएगा. See, this is exactly what we do when we participate in GDPI also. So GDPI process में when the moderator would ask you to summarize the GD, we have to be extremely careful about this one thing not happening from our side, that is adding new ideas in the summary.
ऐसा बहुत बार होता है कि जीडी के दौरान आप बोल नहीं पाते हो अपना पॉइंट, so that is there in your book but you never got an opportunity to go ahead and participate and present that idea. So at the end of the day, when you get this opportunity to summarize the GD, you are tempted to add that your idea also there which has not been discussed, and then you go about saying that we have seen following things during our discussion and you add your point comfortably which was not discussed actually. So ये चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. You're not supposed to add new ideas. जो चीज का डिस्कशन हुआ है, जो वहां एग्जिस्ट करते हैं, वही चीज है जो समरी में आएगी. कोई नया पॉइंट वहां से नहीं आ सकता. आप टोन चेंज कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज कर सकते हो, बट आप नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जो दिया हुआ नहीं. एक डिस्टॉर्शन ऑफ आइडियाज. एक डिस्टॉर्शन ऑफ आइडियाज में क्या होता है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है आपका, जहां पे यू लाइकली टू फॉल फॉर दिस ट्रिक आई वुड से. इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एक वर्ड ये लोग यूज करते हैं, वो वर्ड को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दिया होता है पैराग्राफ में, बट व्हेन यू लुक एट द समरी अगेन दैट वर्ड वुड अपीयर बट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड वुड चेंज. So what generally happens is that because we are under time pressure, we see word for word, अरे ये दोनों substitute हो गया, दोनों एक साथ दिख रहा है, and we go ahead and say अरे दोनों में same word भी दिख रहा है, this is the right summary. But that should never happen. You should read carefully and understand the contextual meaning of the words that you find common between the given paragraph and the given options. तो यहाँ पे क्योंकि मीनिंग कई बार डिस्टॉर्ट होता है, और ये एक्चुअली कैसा होता है ये हम डिस्कस करेंगे व्हेन यू लुकिंग एट द एक्चुअल क्वेश्चंस. आई विल टेल यू बिकॉज़ देयर आर सम प्रीमाइसेस वेयर वी सीन डिस्टॉर्शन ऑफ आइडिया आल्सो. अब इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो जैसे हमने कॉग्निटिव इकोनॉमी डिस्कस किया था लास्ट टाइम पैराजंबल्स में, इफ यू रिमेंबर. कॉग्निटिव इकोनॉमी का मतलब ये था कि अगर जितना चीजों को हम ठीक से कैरेक्टराइज कर देंगे, ग्रुप्स बना देंगे उनके, हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये चीज किस चीज को बिलोंग करती है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है. सो इफ वी हैव अ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ थिंग्स, इफ वी सेग्रीगेट देम प्रॉपर्ली, इट बिकम्स इजियर टू कैटेगराइज थिंग्स एज इन अ बर्ड और एन एनिमल, एन कार्निवोर और हर्बीवोर और व्हाटएवर यू वुड से. सो कॉग्निटिव इकोनॉमी refers to that. So if there is a term called cognitive economy in my given paragraph and we are discussing something like role of cognition in economic activities, now it is highly likely that somebody would misunderstand these to be similar terms, cognitive economy and cognition in economic activities, but these are two entirely different things. Cognition is your ability to learn and relate to things based on your past experiences and observations. आप पूरी जिंदगी में जो चीज देखते आए हो, जैसा आपने एक महसूस किया कि ये ऐसा होता है, उसको आप यूज करके जब किसी चीज को इंटरप्रीट करते हो अपने लाइफ में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉग्निशन, योर एबिलिटी टू इंटरप्रीट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. So वो cognition है. Now cognition in economic activities would actually mean the developmental activities of business, और उसके अंदर आपका ये सारा experience लाना, आपकी understanding लाना और उसको implement करना. Now that is what we mean here when we say role of cognition in economic activities. And cognitive economy is altogether a different term. It has got something to do with the categorization of a particular product in particular category. तो दोनों टर्म में यहाँ पे कंफ्यूज होना ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये काफी मिलती जुलती चीजें लग रही है, बट ओनली व्हेन यू रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड वुड यू बी एबल टू इंटरप्रेट दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मीनिंग इन बोथ द कॉन्टेक्स्ट. Next, grammar and punctuations. Now see, this is one very tricky area. Again, I would say the way you're reading and the way you interpret things needs to be really checked, and you need to be careful about this. For example, let's look at this. Most of the time travelers worry about their luggages or about their luggage. Now, what do you mean by this particular sentence here? Most of the time, travelers worry about their luggages. Exactly. हम यहाँ टाइम ट्रैवलर्स की बात नहीं कर रहे. We really don't know who these guys are, टाइम ट्रैवलर्स. ये sci-fi मूवीज में होते हैं, रियल लाइफ में टाइम ट्रैवलर्स जैसा कुछ नहीं होता है.
But what happens is when you're reading and you might think कि ठीक है, this could be from a fiction novel or कुछ होगा. So most of the time travelers worry about their luggage. Now this just isn't sinking. So therefore you need to be careful when you read these sentences, and you need to take that pause there. So time के बाद में we will have to maybe take a pause, or a comma has to be there. Most of the time travelers worry about their luggage. Now this is making some sense. So time traveler and most of the time travelers, ये बहुत बड़ा difference अभी दोनों के बीच में हमको यहाँ पे दिखा है. दूसरा sentence. What do you mean by this sentence now? Let's eat, comma, grandpa. He's telling his grandpa to eat together. They both will eat together. That is what needs to be interpreted when you read a sentence like this, but the sentence isn't communicating that. It looks like I am speaking to someone else and I am telling this guy, let's eat grandpa, chalo jaake grandpa ko khate hain. So he is already changing my meaning, you know, by leaps and bounds. So yahan pe you're telling grandpa that we will eat together, but it looks like that we are thinking about eating grandpa himself. तो बहुत बड़ा यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ रहा है, बहुत बड़ा मीनिंग हमारा चेंज हो रहा है. सो वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ कैचमेंट एरियाज कि जहां पे हम फंस सकते हैं, अटक सकते हैं. ठीक है. देन मेरा पर्टिकुलर पैराग्राफ होगा, व्हाट वी नीड टू अगेन अंडरस्टैंड इज, या sir, why is there E capital? Why is there E capital? वो मैंने ऐसे ही लिख दिया यार, ऐसे ही लिख दिया. उसका कोई रीजन नहीं है. वो सेंटेंस केस क्या कहते हैं, टाइटल केस में उसको लिखा है. So that L, E and G, टाइटल केस में क्या होता है ना, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं. And this was a short sentence, so I wanted it to look good. I simply wrote क्या. उसमें कुछ बाकी ग्रामर वाला फंडा नहीं लगाना है यहाँ पे कि बीच में ही कैपिटल नहीं आ सकता. Okay, sir. Thank you. दूसरा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पेयर. क्या होता है, कई बार हमारे डिस्कशन में हम देखते हैं जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इट इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड व्हाट कुड बी अ प्रोबेबल सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. सो अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पेयर है तो मुझे देखना पड़ेगा ये दोनों चीज मेरे समरी में आना चाहिए. यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्टेट द प्रॉब्लम एंड से दिस इज द समरी. neither can you go ahead and only present the solution, because I would be wondering the solution is for what. So अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पेयर हमको दिख रहा है कि मेरे पैराग्राफ में है, तो मेरे यू नो समरी में इट हैज टू बी देयर. वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों आना जरूरी होगा. सिमिलरली प्रॉब्लम रीजन काइंड ऑफ अ पेयर. व्हाट इज अ प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस. अगर ऐसा हमको दिख रहा है पैराग्राफ है, तो मेरा प्रॉब्लम एंड स्टेटेड रीजन दोनों को भी आना पड़ेगा. एक के आने से पैरा समरी कंप्लीट नहीं होगी. कॉज एंड इफेक्ट, अगर ये हम देख रहे कोई एक चीज के वजह से इट इज लीडिंग टू द अदर थिंग, देन द मेंशन ऑफ बोथ दीज फेनोमेनन हैज टू बी देयर. किसी एक को मेंशन करने से कंप्लीट नहीं होगा. एंड लास्ट आई वुड से इज दैट डोंट एग्जैजरेट एनीथिंग. जितना दिया होता है उसके अंदर उतना ही लिखना चाहिए हमको. कई बार ऐसा होता है कि वो मिलियंस दे रहा है, उधर आप बिलियंस पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है ठीक है ना, नुकसान तो बड़ा ही हुआ था, क्या बात है, मिलियन बिलियन एक ही हो गया. इट इज नॉट एक ही हो गया. प्लस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग नियरली 100 and 100. There is a difference between saying nearly 100 and 100. They're not one and the same. You can't substitute nearly 100 for 100. ये अप्रोक्सीमेशन है, बट समरी में ये अलाउड नहीं है. नियरली 100 कुड बी 97. 97 कैन आई से नियरली 100? करेक्ट. 103 कैन आई से नियरली 100? yes, but 100 is 100. So you can't really approximate again figures in terms of saying वो almost वो बोल ही रहा है ना nearly 100 years, या ये बोल रहा है 100 years या more than 100 years. तो इसमें क्या होता है कि we have to be again careful about these approximations, so we not exaggerating things, and therefore if it is almost close to 100 and it is less, then you cannot approximate that to be 100. आपकी समरी में आप उसको 100 नहीं लिखोगे. that needs to be kept as it is. उसको चेंज नहीं करोगे आप. क्लियर है?
बस इतनी ही थ्योरी है यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस में वेंचर करेंगे एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। पहला पैराग्राफ, please read. This is choose the option that best captures the essence of the paragraph. देखो क्या होता है, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, एक होता है शॉर्ट समरी, एक होती है लॉन्ग समरीज। जो प्रॉपर समरी के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको दिखेगा जो पैराग्राफ का साइज है ना, ले देकर ऑलमोस्ट 70-80% लेंथ का एक एक ऑप्शन रहेगा आपका, बिकॉज दैट हैज टू kind of capture the entire thing that has been discussed here, except leaving those irrelevant things and not so important things. तो वो होता है एक्चुअली समरी राइटिंग। बट अभी हमको जो इसने बोला है, ये बोल रहा है कि बेस्ट कैप्चर क्या हो रहा है हमारा एसेंस, वो वाला ऑप्शन हमको देखना है। तो यहाँ मुझे मेरी सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ओके दिस इज सेंट्रल टू माय डिस्कशन, देयर हैज टू कम नो मैटर व्हाट। चलो रीड करो इसको, फिर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं नेक्स्ट पेज पर एंड देन वी विल सी। ठीक है, आर वी डन विथ योर रीडिंग? Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. इसमें बताए कहाँ पे चीजें अटक रही है, कौन से वर्ड है जो हमको नहीं समझ में आ रहे हैं। सब्लिमिनल, Yes, sir. Yes, sir. सब थ्रेशोल्ड एंड सुप्रालिमिनल। आई थिंक ये वो वाली एरियाज है जहां पे इसके मीनिंग अगर हमको क्लियर हो जाए तो चीजें और बेहतर हो सकती है। बट नहीं भी अगर हमको इसका मीनिंग मालूम है, आप उसको कोई XYZ कंसीडर करो, तो हमको ये समझ में आ रहा है लार्जली कि वैंस ने अपनी, दिस लुक्स लाइक अ बुक द हिडन परसुएडर, ठीक है, तो उसके अंदर ही इज अलर्टिंग पब्लिक अबाउट द साइकोएनालिटिक टेक्निक्स एंड लार्जली इट सीम्स दैट ही इज बीन टॉकिंग अबाउट सुप्रालिमिनल messaging. He is not talking about subliminal or sub-threshold effects. This is what has been brought out by which guys? Critics and reporters. Reporters and critics. Yes. Reporters and इन्होंने critics. उसको उसके साथ में मेसअप किया है, कंफ्यूज किया है, बट वैंस का ओरिजिनल आइडिया हैज गॉट नथिंग टू डू विद सब्लिमिनल मैसेजिंग और सब थ्रेशोल्ड फॉर दैट मैटर। उसने बहुत कम सब थ्रेशोल्ड पे भी बात की है, बट मेजरली व्हाट ही इज कंसर्न्ड अबाउट एंड टॉकिंग इज सुप्रालिमिनल मैसेजिंग। अब क्या होता है, सब्लिमिनल क्या है एंड सुप्रालिमिनल क्या है? से फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हमारे एरियाज क्या है जिसको हमको ध्यान में देना है, बिकॉज ऑथर क्या बोल रहा है, कैसी टोन में बात हो रही है, क्या प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर वैंस इज अलर्टेड द पब्लिक, इट इज सेइंग he is alerting public, matlab he trying to caution them. So naturally going with an assumption that people probably are ignorant about this or they're not taking note of this, therefore the word alerted has been used there. तो ये मुझे समझने की कोशिश करना पड़ेगा what is it that they're trying to say. So alerted public about psychoanalytical techniques used by the advertising. Its premise was मतलब ये जो चीज उसने किया उसका premise क्या था कि वो advertising agencies use depth interviews to identify hidden consumer motivations, which were then used to entice consumers to buy goods. Entice मतलब उनके अंदर लालच पैदा करना और उनको ढकेलना उस डायरेक्शन में कि जहां वो आगे जाकर उसको परचेज में कन्वर्ट करे। सो टू अट्रैक्ट देम, ठीक है। एंड wrongly, critics and reporters often wrongly assume that Packard was writing mainly about subliminal advertising. Packard never mentioned the word subliminal, however, and devoted very little space to discussion of subthreshold effects. So ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसने बिल्कुल भी subliminal के बारे में नहीं लिखा, ना subthreshold उसका focused area था. And individuals do not always have access to their conscious thoughts and can be persuaded by supraliminal messages without their knowledge. या supraliminal messages भी बहुत important term है because उसका पूरा discussion is about supraliminal, ठीक है। So that would be taken note of, and it would also be noted that with the notion that individuals do not always have access to their conscious thoughts and can be persuaded by subliminal messages without their knowledge. उनके नॉलेज के बगैर सुप्रालिमिनल मैसेजिंग से आप उनको परसुएट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब यहाँ देखिए, सबसे पहले एक मैं आपसे ऐड शेयर कर रहा हूँ।
ये जो एड दिखा रही है, वी विश यू अ स्कैरी हैलोवीन, नीचे दिया है पेप्सी। सो नेचुरली पेप्सी ने ये ऐड किया, जिसके अंदर उन्होंने ये डिपिक्ट किया है कि इमेजिन हाउ स्कैरी इट वुड बी इफ यू गेट अ कोक टू ड्रिंक व्हेन यू एक्चुअली वांटेड पेप्सी। ऐसा करके वो अंदर में पेप्सी पूरा नहीं भी दिख रहा है, लेकिन तब भी इट इज डिपिक्टिंग द ब्रांड पेप्सी देयर, और इस तरह से वो ऐड को यूज किया है। अब इसी ऐड के रिस्पॉन्स में कोका कोला ने क्या ऐड किया, कोका कोला बोल रहा है एवरीबडी वांट्स टू बी हीरो। भाई हर किसी को हीरो बनना है, और वो हीरो कब बनेगा, जब पेप्सी है सिंपल अपने आप में, लेकिन जब वो कोक का एप्रन ऊपर से चढ़ाएगा तब वो हीरो बन जाएगा। So basically everybody wants to be hero, but you cannot be a hero in absence of Coke. So Coke is something that you need if you want to be hero, and everybody wants to be hero, so Coke is for everyone largely. So ये होती है चीजें जहां पे क्या होता है कि ये जरूरी नहीं होता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में हम सारी चीजों को डिटेलिंग में यहाँ रजिस्टर करें, बट एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो पेप्सी का दीवाना होगा उसको पेप्सी का कम्युनिकेशन समझ में आएगा, जो कोक का होगा वो कोक को यहाँ रजिस्टर करेगा, the other communication would get lost somewhere. So this is what is called subliminal advertising, because ये आपके subconscious mind को अपील करता है, because this is running very fast. अभी हम तो इसको स्टैटिक मोड में देख रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, but just imagine this comes on a screen, flash for a second and goes away. So the impression that is left on your mind is either a Coca-Cola or a Pepsi based on what you're acquainted to. So ये हो जाती है subliminal advertising। और क्या होता है कि ऐसी एक ad flash हुई, आपका ब्रेक हुआ मूवी का, एंड नाउ यू फीलिंग थर्स्टी, वो जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है दैट विल आस्क यू टू बाय अ पेप्सी और अ कोक नाउ। अगर दोनों ब्रांड प्रेजेंट है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ओके आई वांट पेप्सी और आई वांट कोक। सो ये होता है कि जहां पे यू नो अनकॉन्शियसली आपको अपील किया जाता है, ये सबलिमिनल इसको बोला जाता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को अपील करता है। अब सुप्रालिमिनल क्या होता है? सुप्रालिमिनल बेसिकली इसके लिए देखो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एक रिसर्च एजेंसी ने, जहां पे एक रेस्टोरेंट में उन्होंने जर्मन और फ्रेंच म्यूजिक प्ले किया बारी बारी से, just to observe what is the difference that they see in the consumer behavior, and the results were shocking. उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने फ्रेंच म्यूजिक प्ले किया तो ज्यादा फ्रेंच वाइन जो है वो ज्यादा उसका ऑर्डर हुआ प्लेस, और जब उन्होंने जर्मन म्यूजिक प्ले किया तो जर्मन वाइन का ज्यादा ऑर्डर प्लेस हुआ। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग हियर इज सुप्रालिमिनल, इसलिए बिकॉज ये मेरे कॉन्शियस माइंड को, आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक, दिस इज माय कॉन्शियस, बट बिकॉज आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक माय सबकॉन्शियस माइंड इज ऑर्डरिंग फॉर द प्रोडक्ट दैट बिलोंग्स टू दैट जॉनर। तो मैं फ्रेंच म्यूजिक सुन रहा हूं तो मैं फ्रेंच वाइन ऑर्डर कर रहा हूं। So that is what was happening. तो ये होता है supraliminal, जहां पे जो इफेक्ट हो रहा है, जो चीज आप देख रहे हो, you are engaged with that, but without you knowing, you are still getting into the action which is influenced by supraliminal messaging. Now here the messaging is listening to that sound, that music itself is that supraliminal messaging for you. So ये एक advertising का बड़ा concept है, and you guys would actually be studying all these things in detail with many such examples once you start with your MBA studies at any of the top B schools. तो ये सारी चीजें तुम भी आगे सीखने वाले हो। So this is how it's going to be. So subliminal and supraliminal, ये दोनों चीजें अभी हमको क्लियर हो गई है। हमने देखा कि Vance का largely focus was on supraliminal, but reporters kind of distorted that and they started relating it to the subliminal, which was not the intention of Vance. अब आप क्या ऑप्शंस देखते हैं एंड यू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। सर फर्स्ट वन ओके, यू गाइस कैन पिंग योर मैसेजेस, यू कैन पिंग योर ऑप्शंस, आप चैट में डालिए। सो लार्जली इट सीम्स दैट द कंसेंसस इज फॉर आंसर ऑप्शन 4, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही हिंट मैंने आपको दे दिया while I was explaining the paragraph, and I have been you know very forcefully directing you all towards the direction of identifying supraliminal and without being aware. So ठीक है, ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये मैसेजिंग मेरी इस बार सुप्रालिमिनल हो गई है,
अब next question से I will see if I can maintain that subliminal levels and not give you any hints in specific. But I'm pretty happy to see large number of you, almost 95% of you, I think, have got the answer right, and that is like answer option 4. But देखिए हमारे लिए ये important नहीं है कि आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट है, हमारे लिए ये important है कि मैं फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को किस बिना पे रिजेक्ट कर रहा हूँ. व्हाट इज माय बेसिस फॉर रिजेक्टिंग दीज आंसर ऑप्शंस, बिकॉज अनलेस वी डेवलपिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक गट फीलिंग के साथ कि मुझे फोर्थ राइट लग रहा है, दैट गट फीलिंग मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट. सो हमको थोड़ा कॉन्क्रीट होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हैविंग आवर एक्सप्लेनेशन इन प्लेस व्हेन वी से दिस इज द राइट आंसर. वन में व्हाट यू थिंक इज द इशू? सबसे बड़ा इशू मुझे दिख रहा है भाई सुप्रालिमिनल का कोई मेंशन ही नहीं है, इंस्टेड सबलिमिनल लेवल के बारे में इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे. ठीक है, सो on those grounds I can very comfortably reject this because it says it works at the subliminal level and it has been again credited to Packard, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ये पूरा का पूरा गड़बड़ी इन्होंने किया, इसलिए मैं ऑप्शन 1 को रिजेक्ट कर रहा हूं. So this is a big no. Now wherein the people targeted are aware of being persuaded, हमने क्लैरिटी से देखा है कि दे नॉट अवेयर ऑफ बीइंग परसुएडेड, उनके अंडरस्टैंडिंग के बगैर ये चीज हो जाती है. तो भले ही यहाँ पे सुप्रालिमिनल मुझे दिख रहा है कि अवेलेबल है, बट आगे जो इन्होंने लिखा है आर अवेयर ऑफ बीइंग परसुएडेड, नो दे आर नॉट अवेयर ऑफ बीइंग परसुएडेड. उनके नॉलेज के बगैर सबकॉन्शियस माइंड को अपील कर जाती है चीज, जबकि सुप्रालिमिनल मैसेजिंग आप सामने देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आप म्यूजिक को सुन रहे हो, लेकिन वाइन आप ऑर्डर कर रहे हो सबकॉन्शियसली विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू डूइंग दिस. सो इसलिए ये आइडिया यहाँ डिस्टॉर्ट हो गया है, पूरा चेंज कर दिया इन्होंने. सो दिस इज अ बिग नो अगेन, and this again says that it works at a subliminal level which is not correct, so this is also rejected. So हमारा supraliminal and not aware of being persuaded, ये दोनों points fourth में आ रहे हैं, so we going with the answer option 4. So this is the correct answer here. So चलो बहुत अच्छा एक head start मिला है and large number of you were able to identify the right option. Now that definitely puts me into an exciting mode. Let's see what happens with question number 2 now. Let's start reading. Are we done with the reading? Largely yes. चलो important points देखो यहाँ पे क्या क्या, जहाँ पे हमारा attention जाना चाहिए. is physics का जो होता है that seeks to understand the behavior of matter without regard to whether it will afford any practical benefit. मतलब फिजिक्स का नेचर ये है कि वो ये नहीं देखता है कि जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे इन्वेंट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल कोई बेनिफिट में ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा. इट्स जस्ट कंसर्न अबाउट अ पर्टिकुलर स्टडी. दैट इज हाउ इट इज. और इंजीनियरिंग इज द कोरिलेटिव अप्लाइड साइंस इन व्हिच फिजिकल थ्योरीज आर पुट टू सम स्पेसिफिक यूज, such as building a bridge or a nuclear reactor. Now, what do you understand from this particular sentence? What would be your observation? हमने rules में कुछ चीजें डिस्कस की थी. Would you like to recall those rules and tell me कि हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है हमको सर? Examples. Exactly, that is what I was looking for. Example, such as building a bridge or a nuclear reactor. तो ये एग्जाम्पल्स है. सो ये डेफिनेटली ट्रू है कि भाई एग्जाम्पल्स मेरी समरी में बोलो या कैप्चरिंग द एसेंस में बोलो नहीं आ सकते. सो आई वुड नॉट बी कंसर्न अबाउट दिस एग्जाम्पल्स इन केस दे अपीयर एनीवेयर इन माय समरी. ठीक है. इंजीनियर ऑब्वियसली रिलाई हेवीली ऑन द डिस्कवरीज ऑफ फिजिसिस्ट. सो इंजीनियर्स जो होते हैं, जो फिजिसिस्ट की डिस्कवरीज है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बट एन इंजीनियर्स नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट द सेम एज फिजिसिस्ट नॉलेज. इन फैक्ट द इंजीनियर्स नो हाउ विल ऑफन डिपेंड ऑन फिजिकल थ्योरीज दैट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्योर फिजिक्स आर फॉल्स. सो जो चीजें वहां पे डिनाई हो जाती है फिजिक्स में, वो पर्टिकुलर बेसिस बनाकर ये चीजें प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट होती है. बिकॉज फिजिक्स में क्या होता है, जो चीजें हो रही है वो एक कंट्रोल एनवायरमेंट में ही ट्रू है, पर आप वो एनवायरमेंट से बाहर निकल गए तो अब वो थ्योरी ट्रू नहीं है. तो जो इंजीनियर है उसको तो ओपन एनवायरमेंट में काम करना है, उसको क्लोज लेबोरेटरी में काम नहीं करना है.
सो देयरफॉर कई सारी थ्योरीज जो फिजिक्स में रिजेक्ट हो जाती है, दे विल होल्ड गुड and workable for engineers in the real scenario is what it tries to tell us. Okay, not the same as the physicist knowledge and of view of pure physics are false. तो ये हमको यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन और दोनों का कंपैरिजन इनफैक्ट दिखा रहा है. हम ये देख रहे हैं कि यार फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग आर पोल्स अपार्ट. फिजिक्स का टोटल थियोरेटिकल बेस है और इंजीनियर्स का टोटल प्रैक्टिकल बेस है. और एक चीज जो एक्सेप्ट करता है वो दूसरा रिजेक्ट करता है. एक चीज जो एक के काम की है वो दूसरे के काम की नहीं है. दैट इज हाउ वी सी दिस थिंग्स. ठीक है. Plus this also says, now see, when I am reading something, there are some reasons for this. There are some reasons. देखो, we spoke of this in the beginning, the problems and reasons probably. Now here there are some reasons of this. I would be focusing on what reasons are there. So first, जैसे उसने बोला फर्स्ट, जैसे उसने बोला सेकेंड, ये हमारे कैच एरियाज है. इसको हमको पूरा ध्यान में लेना चाहिए कि वी नॉट मिसिंग ऑन दीज डिटेल्स कि फर्स्ट में वो क्या बोल रहा है, सेकेंड में वो क्या बोल रहा है. So first में theories that are false in purest and strictest sense are still sometimes very good approximations to the true ones and have often have the added virtue of being much easier to work with. So पहला वाला चीज हमको ये बोल रहा है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म में फॉल्स हो जाती है वो कई बार वर्केबल हो जाती है जब हम उसको रियल सिनारियो में देखते हैं, बिकॉज दे आर अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ रियल सिनारियो. वो फॉल्स हो गया बिकॉज ऑफ सम स्मॉल डिविएशन दैट वाज नॉट इन कंप्लायंस, बट अगर रियल सेंस में देखा तो अप्रोक्सीमेशन के लिए बहुत अच्छा है. सेकेंड क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स द ट्रू थ्योरीज अप्लाइज ओनली अंडर हाईली आइडियलाइज्ड कंडीशन व्हिच कैन ओनली बी क्रिएटेड अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल सिचुएशंस. तो ये हो गया फिर से थ्योरेटिकल बेस. सेकेंड वाला थ्योरेटिकल बेस के ऊपर बोल रहा है कि वो पूरा का पूरा बेस होता है जो रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा. पर इंजीनियर्स रियल लाइफ में काम करते हैं उन चीजों पर जिसको फिजिसिस्ट बोलता है कि ये हम रिजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया कि इंजीनियर उसको भी एप्लीकेबल बनाता है जो रिजेक्ट किया जाता है, और कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो चीजें रॉन्ग प्रूव हो जाती है वो रियल सिनारियो में यूज करता है. प्लस एक पॉइंट हमने देखा कि whatever seems false is a very good approximation of use in real time scenario. फर्स्ट एंड सेकेंड. तो ये हमारे कैचेस हो गए. ये जब भी नेक्स्ट टाइम भी आप रीड करोगे, व्हेन यू सी थिंग्स लाइक फर्स्ट सेकेंड एंड ऑल दिस, दीज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट थिंग्स. हम इसको डेफिनेटली ध्यान में लेंगे कि ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे. अब ये आपके ऑप्शंस आ गए. जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन 4 मार्क किया है शुड प्लीज रीड इट केयरफुली. हम ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं. On matters like building a bridge or a nuclear reactor, these are examples. हमको एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं करना है समरी में, सो डेफिनेटली फोर्थ मेरा ऑप्शन नहीं होगा. आंसर ऑप्शन 1 ये बोल रहा है स्ट्रिक्टली लीनियर है. स्ट्रिक्टली लीनियर, वेरी एज पर प्री डिफाइंड फिक्स्ड रिलेशनशिप. लेकिन हमको तो कहीं पर भी इसका कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखा कि ये इसी लीनियर का मतलब क्या हो गया. एक स्ट्रेट लाइन मैं बना सकता हूँ, मतलब x इज इक्वल टू वाई इज ऑल्सो अ लीनियर रिलेशन. तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ता जा रहा है. या फिर यू नो जो एक लाइन का स्लोप हम ड्रॉ करते हैं, सो y इज इक्वल टू mx प्लस h इज ऑल्सो लीनियर रिलेशनशिप. इज जस्ट दैट वो एक प्री डिफाइंड पैटर्न के साथ लेकिन वैरी हो रहा है, बट इट इज इन डायरेक्ट रिलेशन. जितना इधर वेरिएशन आएगा उसका प्रोपोर्शनेट वेरिएशन उधर दिखेगा, एंड दैट्स द रीजन वी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो भाई यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन इन्होंने नहीं बताया कि एक चीज टोटली दूसरे पे डिपेंडेंट है. इनफैक्ट हम तो ये बोल रहे हैं कि जो ये रिजेक्ट करता है वो उसको एक्सेप्ट करता है. सो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कोरिलेशन बीइंग स्ट्रिक्टली लीनियर, दैट इज डेफिनेटली नॉट देयर. सो ये एकदम 100% गलत ऑप्शन है आंसर 1. Now second, by and large, though engineering draws heavily from pure science, it contributes to knowledge by incorporating the constraints and conditions in the real world. तो हमने यहाँ control conditions की भी बात कर ली, और वो जो approximation था, it is a very good approximation. तो naturally वो false हुआ because of certain small constraints. तो उन्होंने उसको भी incorporate करके workable किया. तो दोनों भी point 1 and 2 का essence एक single sentence में दिखता है. So this seems pretty good to us as of now, क्योंकि यहाँ मुझे contradiction कहीं नहीं दिख रहा है.
ये भी बात ठीक है कि इंजीनियरिंग ड्रॉज हेवीली फ्रॉम प्योर साइंस, ये उन्होंने बोला ही है, ठीक है। लेट्स लुक एट थर्ड ऑप्शन, द यूनिक टास्क ऑफ द इंजीनियर इज टू आइडेंटिफाई। ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं कि इंजीनियर का यूनिक टास्क क्या है। वी बीन टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस इन इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिसिस्ट, बट उसका यूनिक टास्क कुछ होता है इंजीनियर का, ये हमको मालूम ही नहीं कि ये कोई एक पर्टिकुलर यूनिक काम कर रहा होता है। So that has not been mentioned there, और मैंने क्लैरिटी से आपको बोला जो चीज मेंशन नहीं है पैराग्राफ में, कोई नया आइडिया हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। इंजीनियर कोई यूनिक वर्क कर रहे हैं, ये हमको कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि उनका टास्क क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। और लास्ट में बोला है फिजिक्स फंडामेंटली डिफर ऑन मैटर्स लाइक, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। और दूसरा ये है कि फंडामेंटली ये लोग डिफर करते हैं, उस पर इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग। दे ओनली सेइंग कि इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते, लाइक बिल्डिंग ब्रिजेस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। नाउ दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि भाई फिजिक्स इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है इन चीजों पे, ये कहीं पे मेंशन नहीं है। इट इज जस्ट सेइंग दैट ये अलग इनका काम है, ये लोग एप्लीकेशन ओरिएंटेड करते हैं जिसमें कि वो लोग ये सब चीजें काम करते हैं, बट इसमें फिजिक्स का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर वी डोंट रियली नो अबाउट इट, ठीक है। सो देयरफॉर 1, 3 एंड 4 में कहीं ना कहीं हमको एनोमलीज दिख रही है जो जस्टिफाई की जा सकती है कि यस दिस इज नॉट करेक्ट ऑन दीज ग्राउंड्स। सो आंसर ऑप्शन 2 ऐसा है जहां पे सब चीजें सीम्स टू बी इन प्लेस एंड देयरफॉर विल बी आंसर ऑप्शन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। रीडिंग पार्ट हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। लार्जली हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए जो कैचमेंट एरियाज है, अगेन ability to think about distant things necessarily precedes the ability to talk about them। ऐसी चीजें जो आपके सामने नहीं है, अगर उनके बारे में हमको बात करना है तो पहले हमको उसके बारे में सोचते आना पड़ेगा। Unless you can think about things that are not present, how would you be able to talk about them? So ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है फॉर मी टू बी एबल टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इज एबिलिटी टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स। ये सबसे बड़ा क्रक्स है हमारे लिए यहाँ पे। तो अगर ये ऑर्डर मुझे समझ में आ गया, गिवन एवरी अदर थिंग हियर कि भी डिस्टेंट थिंग्स के लिए एक रेफरेंट होता है टू माइंड एंड एब्सेंट के लिए एक स्टिम्युली की जरूरत नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट, व्हाट क्रक्स कैन यू ड्रॉ आउट ऑफ दिस इज दैट thinking happens first and then starts the communication. For you to be able to talk, the thought has to start. If there is no thinking, you cannot communicate. ठीक है? इसमें कोई पर्टिकुलर एरिया जहां पे हमको क्लैरिटी चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है आपको, कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे? आई थिंक उतना डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज बाय एंड लार्ज ओके, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए थॉट्स नॉट लिमिटेड टू द हियर एंड नाउ कैन पॉप इनटू आवर हेड्स फॉर अनफैथमेबल रीजंस। इसके काउंटलेस रीजंस हो सकते हैं कि ये क्यों ऐसे होता है हमारे साथ में। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाई इट हैपेंस, ठीक है। सो वी रियली डोंट नो, समटाइम्स वेरी वेगली you would think about something and then suddenly you will laugh, somebody asks you क्या हुआ, you can't really tell this guy that why that particular thought came into your mind and how this popped up, because it seems so weird. From nowhere it started connecting with something that holds no value on this earth and it came in your mind. तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि unfathomable reasons के लिए होता है कि why something pops up in your mind. For unfathomable reasons you really don't know why is it happening, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन, ये जो वर्ड ओनली ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू थिंक, देखो ये कहीं पर भी हमको बताया नहीं गया कि सिर्फ ह्यूमंस है जो ये सोचने की जिनमें क्षमता है। सो सिंस दिस इज नॉट बीन मेंशन्ड, एंड अगेन आई सेड वेरी क्लियरली that nearly 100 and 100 are two different things, and similarly only is a very sensitive area of your summary writing. In many questions have I seen this happening जहां पे एक पर्टिकुलर जोनर की बात हो रही होती है और ये स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर को पकड़ लेगा और बोलेगा ओनली दिस,
Now we have to be very careful about this कि क्या इसने only वाला चीज mention किया या ये generally applicable to all living beings की बात करता है. So ये यहाँ पे सबसे बड़ा catch है कि only humans से बोल रहा है, which is not true. Are we in consensus with this, or you want me to go back to the paragraph and read this again? Only वाला जो part है, आपने ध्यान से पढ़ा था paragraph? Sorry, ठीक है, चलो okay. 2 says the ability to think about objects not present in our environment precedes the development of human communication. So ये वही बात कर रहा है जो हमने अंडरलाइन की थी, जो हमारा सेंट्रल मुद्दा है यहाँ पे कि हमको सोचना किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो प्रेजेंट नहीं है, ये पहली प्रोसेस होती है बिफोर वी डेवलप अ कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट वी स्टार्ट थिंकिंग एंड देन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. ठीक है, सो कम्युनिकेशन के लिए थिंकिंग इज अ प्री रिक्विसाइट. नेक्स्ट थर्ड में देखिए, ये लिख रहा है फॉर नो रियल रीजन, जबकि हम तो बोल रहे हैं कि रीजंस आर अनफैथमेबल. सो नेचुरली ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे गिवन सेंटेंस को यहाँ पे. ठीक है, अब ये देखिए जो लोगों ने फोर्थ आंसर ऑप्शन मार्क किया, दिस इज व्हाट यू नीड्स टू अंडरस्टैंड. स्पीच एक्ट्स, ये जो है ये अपने आप में एक फ्रेज है. दिस हैज अ मीनिंग. स्पीच एक्ट्स का मतलब होता है स्पीकर्स इंटेंशन एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन द लिसनर. स्पीच एक्ट्स वो होते हैं जिसमें पहले से डिसाइड किया जाता है कि स्पीकर क्या बोलेगा, बिकॉज ही वांट्स व्हाट इफेक्ट फ्रॉम द ऑडियंसेस. तो जब उस तरह की प्लानिंग के साथ में वो चीज की तैयारी की जाती है और तब फिर आप परफॉर्म करते हो स्टेज पे, दोज आर कॉल्ड स्पीच एक्ट्स. अब फिर से देखो वो ब्यूटीफुल कैच जो हमने कॉग्निटिव इकोनॉमी एंड रोल ऑफ कॉग्निशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की, वो सिमिलरली ये स्पीच एक्ट को हमने बोला कि हाँ ये लैंग्वेज एंड स्पीच से रिलेटेड है, सो मोर और लेस सेम चीज है, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, बट स्पीच एक्ट्स इज an altogether different phenomenon as compared to the language that we're talking about in general. ठीक है, कम्युनिकेशन. तो इसलिए इस बिना पे ये चीज रिजेक्ट होगी फोर्थ वाली, बिकॉज यहाँ पे स्पीच एक्ट्स आया है जो हमारे पैराग्राफ में कहीं मेंशन ही नहीं है इसके बारे में कि इसमें हम क्या करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये आइडिया टोटली डिफरेंट हो गया. सो आंसर ऑप्शन 2 ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा. आर वी गुड विद दिस? किसी को कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन? या सर, but I just wanted to clear is कि the speech acts can be related to the paragraph which we studied ना, कि हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि जिस पैराग्राफ में जो जिस स्पीच की बात की है, एक थॉट प्रोसेस की बात की है, तो अगर मतलब वो सोच के 4 पे था, ये डाउट है सर. मैंने एक और चीज आपको बोली, कोई भी नई चीज आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे. स्पीच एक्ट के बारे में अगर पैराग्राफ में नहीं दिया है, तो कम्युनिकेशन तो अपने आप में इतना जनरलाइज टॉपिक है कि उससे रिलेटेड मैं 50 आइडियाज डाल सकता हूँ कि ये बोलकर कि हम तो कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं ना सर पैराग्राफ में. बट क्या ये पर्टिकुलर स्पीच एक्ट ये मेंशन हुआ है क्या उसमें? नो सर. हाँ, यहाँ हमको केयरफुल रहना है. कई बार ऐसा होगा, देखो यार ब्यूटी तो वही है ना कि आइडियाज विल लुक वेरी सिमिलर टू द सेंट्रल आइडियाज दैट आर मेंशन्ड इन योर पैराग्राफ, but our ability to distinguish between that minor difference, that subtle difference between what is given and this is a deviation from the original, is where it would decide whether we are getting into the IIMs or we're not getting into that. So इसके बारे में हमको थोड़ा सा और ज्यादा इस एक्टिविटी को केयरफुली करना पड़ेगा. एंड डोंट फॉल फॉर दीज कैचेस. ये होना स्वाभाविक है, ये इंटेलिजेंट माइंड्स को ट्रैप करने के लिए क्वेश्चंस बने हैं. तो अगर आप इसमें ट्रैप हो रहे तो कोई गलत मैं नहीं मानता हूं. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी मोर केयरफुल व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस. ये मिस्टेक किसी से भी हो सकती है. एंड just to build your confidence and boost it further, let me tell you that when I was reading, I also fell for this. वो स्पीच एक्ट एक बार रीड करके इवन आई थॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पीच ओनली, वो एक्ट वाला चीज आई इग्नोर्ड. देन व्हेन आई अगेन क्रिटिकली रेड, तो मुझे वहां समझ में आया कि यार ये स्पीच एक्ट्स की बात कर रहा है. एंड देन व्हेन फर्दर आई डिड मोर डिगिंग ऑन दैट, आई कुड अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ऑलटुगेदर अ डिफरेंट थिंग.
तो ये चीज प्रैक्टिस से आएगी. Even for a person like ours, the trainers, anybody on a national level who's been dealing with these things for all these years, ये बहुत possibility है कि कोई भी इस ट्रैप में फॉल कर सकता है. So हमको ये केयरफुल रहने का जो एबिलिटी है इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा. We'll have to be critical when we are reading these things. बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा. Yes, ठीक है? sir. हाँ, युग वो Yes, जो sir. हुआ कोई उससे दिक्कत नहीं है. आपका सोच अपनी जगह बराबर है, बट मुझे एग्जैक्ट चीज वही चाहिए जो पैराग्राफ में दी है. मैं आइडिया का डिविएशन नहीं और नया आइडिया नहीं, ये दोनों चीज हमको नहीं चलेगी. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Definitely. चलो, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन 2 में अभी हम सब कंसेंसस में है, राइट? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. देखिए, कुछ चीजों के मीनिंग मैंने ऑलरेडी लिख दिए है सो दैट यू आर एबल टू इंटरप्रेट इट प्रॉपर्ली. ओके, सो डन विद द रीडिंग. सब मीनिंग्स क्लियर है आपको? Yes, जो sir. मैंने लिखे हैं? इसमें कोई पर्टिकुलर चीज है जिस पे डिस्कशन करना है? Okay, can you pronounce this fourth word there in the first line? Autapomorphy. Autapomorphy, yes. तो इसका मतलब क्या है? साइंटिफिकली कोई चीज को जब हम कैटेगराइज करते बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रेट्स, सो देन दैट इज कॉल्ड ऑटोपोमॉर्फी. ठीक है, ये क्लियर है आपको? ठीक है. और इसके बाद में हम इन आर लीनिएज का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर को जिसको हम डिसेंड करते हुए आ रहे हैं, मतलब जहां से हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और जिस पर्टिकुलर फैमिली को हम बिलोंग करते होंगे, वहां से पूरा जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं लीनिएज. सो ह्यूमन बीइंग्स का एक पर्टिकुलर लीनिएज होगा. ठीक है? एंड नॉट शेयर विद द अदर ब्रांचेस ऑफ आवर ग्रुप सच एज प्राइमेट्स. प्राइमेट्स का मतलब ऊपर मैंने दिया हूं कि मंकीज की जितनी प्रजातियां ये प्राइमेट्स है. हम सारी प्रजातियों से इवॉल्व नहीं हुए, राइट? वी आर सपोज टू हैव गॉट इवॉल्व्ड आउट ऑफ एप्स. ठीक है? सो एप से हम ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए ऐसा माना जाता है, बट मंकीज की सारी प्रजातियां जो है ये कोरिलेटेड है. दीज आर ब्रांचेस ऑफ द सेम ग्रुप. अगर हम इसको कैटेगराइज करें साइंटिफिकली बेस्ड ऑन द ट्रेट्स, तो हम सब एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस है. तो ये बोल रहा है कि लैंग्वेज जो है इज फाउंड ओनली इन आर लीनिएज, मतलब ये हमारे ही पर्टिकुलर ग्रुप और ब्रांच में है, नॉट द अदर ब्रांचेस ऑफ आर ग्रुप. दिस इज व्हाट इट मींस. ये चीज हमको अगर समझ में आ जाती है तो पैराग्राफ का एसेंस आपको क्लियर हो जाएगा. आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है. This further says we also have no definitive evidence that any species other than Homo sapiens we the human beings ever had language. हमारे पास में definitive evidence इस चीज के नहीं है कि किसी और स्पीशीज में भी लैंग्वेज रही होगी. तो क्या मैं इससे डिराइव कर सकता हूं रही होगी कि नहीं रही होगी? What is it indicating? Yes or no? It did not have a language. Yeah, this indicates that we can't be sure of this particular thing, that language did not exist in other branches or other species, because it is clearly mentioned we also have no definitive evidence. हमारी मान्यता ये कि सिर्फ ये हमारी lineage को belong करती है language, but हमारे पास definitive evidence नहीं है इसके. So it is possible that it could have belonged to the other branches also. Clear? However, it must be noted straight away that language is not a monolithic entity, but rather a complex bundle of traits that must have evolved over a significant time frame. देखो, मोनोलिथिक का मतलब carved out of one big rock. एक कोई बड़े स्टोन से एक अगर हिलक बन जाता है तो उसको भी हम बोलते हैं ये मोनोलिथिक, एक सिंगल स्टोन से बना है. देखो, कहीं अगर आपने टूरिज्म किया होगा तो दे वुड से मोनोलिथिक स्टैचू. एक बड़ा सा स्टैचू होता है, इट इज कार्व्ड आउट ऑफ वन सिंगल स्टोन, सो दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक. ठीक है? तो कोई भी चीज एक सिंगल एंटिटी से बनती है इस तरह से तो हम मोनोलिथिक बोलते हैं. बट यहाँ पे दूसरा एक और मीनिंग होता है मोनोलिथिक का, which is pertaining to the organizations.
अगर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में मैं वर्ड मोनोलिथिक यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है स्लो टू चेंज. The organizations that are not very fast in adapting the changes, they are slow to changes, are also called monolithic. ठीक है. So ये दो meanings हमको यहाँ पे समझ में आते हैं इसके. Moreover, language crucially draws on aspects of cognition that are long established in the primates lineage, such as memory. The language faculty as a whole comprises more than just the uniquely linguistic features. Now, uniquely linguistic features का मतलब क्या होता है? Again, belonging to a particular group. जैसे भी अलग अलग ब्रांचेस है, हमारी एप्स की, ह्यूमंस की लैंग्वेज एक पर्टिकुलर टाइप की होगी, कोई दूसरे ग्रुप में जाओगे तो उनका लैंग्वेज का पैटर्न वो अलग रहेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक फीचर्स. वो उनके पर्टिकुलर ग्रुप के वो फीचर्स है कि वहां इस तरह से बात की जाती है. जैसे हम देखते हैं कि डम एंड डेफ लोगों की अपनी एक साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, वैसे जो ब्लाइंड्स होते हैं उनकी ब्रेल होती है. नाउ दीज आर अगेन लिंग्विस्टिक फीचर्स, बट सिंस इट इज नॉट कंसर्न विद टॉकिंग तो इसलिए हम इसको असाइड रख सकते हैं. बट यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मींस. जब हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक फीचर मतलब हर पर्टिकुलर ग्रुप का, एक कैटेगरी का कुछ ना कुछ यूनिक डेफिनेशंस होती है कि हम क्या चीज को कैसे बात करते हैं. तो लैंग्वेज फैकल्टी जो है ये कई सारी ऐसे फीचर से कंप्राइज होती है, कोई एक सिंगल फीचर नहीं है इसका, इज व्हाट वी आर सेइंग. ये यहां तक क्लियर हो गया हमको? जब तक इस टोटालिटी में हमको ठीक से पैराग्राफ ना समझे हम कॉन्फिडेंटली जाके राइट ऑप्शन पिक नहीं कर सकते. इसलिए मुझे लगता है हमारी रीडिंग पे, हमारी वोकैबुलरी पे और इंटरप्रिटेशन स्किल्स पे थोड़ा हमको वर्क करना चाहिए कि पूरी क्लैरिटी हमको अटेन हो जाए बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस. ठीक है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. ये ऑप्शंस है आपके. ओके, अगेन आई सी दैट मेजॉरिटी ऑफ यू आर for answer option 4, that is D, and quite a few have also opted for answer option 1, which is A. Now I want one of you guys to talk about why have you rejected answer option A when you selected D. On what ground So for the you reject? so Yeah. as we had read in the earlier paragraph, is like there is no such solid reason for which we can trust on this thing that only humans have this language pattern or any part of communication. So as the word only we had discussed, so only से Yes. पहला option is cut, उसके बाद पढ़ा ही नहीं फिर. परफेक्ट, बस बात ही खत्म हो गई. देखो ये चीज है जो स्किल हमको डेवलप करना है, और ये स्किल अगर आज हमने एक चीज डेवलप की तो कहीं ना कहीं एक नॉच हम ऊपर उठ गए जब पैरासमरी के क्वेश्चन सॉल्विंग आता है. ये चीज मैं आप में देखना चाहता हूं. जैसा आपने बोला युग अभी कि बस मैंने वो ओनली इन ह्यूमंस पढ़ा तो मैंने छोड़ ही दिया, वहां आगे पढ़ा ही नहीं, बिकॉज मुझे शॉर्ट कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई यहाँ पे. व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम रीडिंग अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस? सो ये चीजें हैं जिसको हमको इंप्लीमेंट करना है. वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव. ठीक है. सो ये अभी हमने देखा यहाँ पे ये ओनली इन ह्यूमंस जो बोल रहा है ये गड़बड़ है. इनफैक्ट इट इज सेइंग दैट नो इट इज फाउंड इन आवर लीनिएज. तो कैसा है कि ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमंस वी आर नॉट द ओनली वंस. ये हमारे लीनिएज में ये बोल रहा है कि इट इज फाउंड इन आवर लीनिएज, और हमारी लीनिएज ट्रेसेस बैक टू एप्स आल्सो. So only in humans is not good idea. अगर वो only in our lineage बोलता ना तब ये मीनिंग सेम हो जाता, क्योंकि वहां lineage बोला है. Language is found in our lineage ही बोला है वहां पे, but that belongs to the entire thing. जब आप humans बोल रहे हो, now this is not talking about the lineage. It is talking about the human species that have evolved over the time, and today we are here as in a separated entity from the lineage. सो यहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हो, बट दैट्स नॉट ट्रू. ठीक है. तो इसलिए ये पॉइंट ए हमारा डेफिनेटली यहाँ गलत होता है, बिकॉज ओनली इन ह्यूमंस नहीं बोल सकते हो. इन आवर लीनिएज जो वो बोला था उन्होंने पैराग्राफ में मेंशन किया है. एक बार देखिए उसको हम ट्रेस बैक करते जस्ट टू बी श्योर ऑफ व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे देखिए लैंग्वेज इज एन ऑटोपोमॉर्फी फाउंड ओनली इन आवर लीनिएज है ये. दिस इज नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स आप नहीं बोल सकते हो. लीनिएज का मतलब एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड टिल इवोल्यूशन, सब आगे इसमें स्पीशीज. ठीक है. तो ये गड़बड़ी है यहाँ पे कि वो ह्यूमंस बोल रहा है, और ये गलती होना स्वाभाविक है कि हाँ वहां भी बोला है कि ओनली भी आया है और ये लीनिएज मतलब हम ह्यूमंस ही बोल रहे हैं, बट इट्स नॉट ट्रू.
Okay, next आ गया हमारा language is a distinctively human feature as there is no evidence of the existence of language in any other species. Now we don't have a definitive evidence of it existing and that there is no evidence of its existence में फर्क है, ठीक है? तो ये चीज distortion of idea है. It cannot be substituted for saying that we don't have a definite evidence. इसका मतलब there is no evidence. No, there are evidences, but we have not got everything on our board. Basically, that is what we're trying to say. So original idea is we don't have definite evidences, but that does not mean there are no evidences. ये universal हो गया. जब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास डेफिनेट एविडेंसेस नहीं है तो मैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ. सम वाला स्टेटमेंट हमने वो की होगी ना, आपने सिलोजिज्म्स किए होंगे, ऑल एज आर बीज एंड ऑल बीज आर सीज. जस्ट इन केस अगर आपने वो किए हो तो उसमें यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, ऐसे 4 सेंटेंसेस होते हैं. सो यूनिवर्सल्स आर ऑल एज आर बीज, no A's are B's. These are universal sentences क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्रुप पे अप्लाई करता है कि एक भी A B नहीं है और एक भी और सारे A B's है, ये पूरे के पूरे ग्रुप पे अप्लाई कर रहा है. But when I say some A's are B's or when I am saying some A's are not B's, now this is पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रही है उस ग्रुप में. A का एक ग्रुप है उसमें पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है मेरा सब्जेक्टिविटी यहाँ पे आ जाती है. ये यूनिवर्सल नहीं, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है? सो व्हेन वी से वी डोंट हैव डेफिनेटिव एविडेंस एंड वी से वी हैव नो एविडेंस, नॉट नो एविडेंस इज अ यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, बट नो डेफिनेट एविडेंस मतलब देयर आर सम डेफिनेट एविडेंसेस बट नॉट ऑल, इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो पर्टिकुलर एंड यूनिवर्सल आर नॉट द सेम, तो इसलिए ये यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा. See, so language evolved with linguistic features built on features of cognition such as memory. Now, linguistic features के ऊपर ये based था, ये हमने last line में देखा है, और memory and cognition का भी इसमें समावेश है. So language जो है ये evolve हुई है इस तरह से. और D option मेरा बोलता है कि language is not a single uniform entity but the end result. Language is not an end result of a long and complex process of linguistic evolution. Let's understand. It kept evolving over the longer period, but there was a language that came into being long back. ऐसा नहीं हुआ कि ये evolution कई समय चलता रहा और फिर end में हमको एक चीज मिली जिसको हमने बोला ये language है. Language started. It's just that आज भी ये language evolve हो ही रही है. It's like this. आप सीधा समझ के चलो यार कि तुम किसी नए आइलैंड पे चले जाते हो और वहां कोई नए प्लांट की स्पीशीज तुम देखते हो. Now since you're trapped on that island and when you want to communicate with each other, वो पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज जो तुमने कभी नहीं देखी, जिसका नाम नहीं है, तुम उसका नामकरण करोगे ना. सो ये प्रोसेस अभी भी इवॉल्व हो रही है. नॉट एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज नोन टू अस, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर स्टिल unaddressed. तो जैसे जैसे चीजें सामने आएगी, there will certainly be some terminology that will be used to define those things. So ये language हम बोल नहीं सकते कि किसी चीज का end result है. End result का मतलब होता है पूरा तैयार होके जब मुझे मिला तब मैंने बोला अब ये language है, जबकि language एक continuous process है. It came into being long back and it kept evolving. So language was always there since the beginning of the process and not at the end of the process. तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे distortion है ये in terms of seeing कि but the end result of a long process. ये पूरा मीनिंग आपका बदल दे रहा है जब आप बोलते हो कि ये एंड प्रोडक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन रहेगा, whilst many of you marked or pinged answer option D. So you need to be extremely careful here कि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जब हम इसको देख रहे हैं कि but the end result. अब आपको एक नई चीज मालूम पड़ गई. सो जब भी नेक्स्ट टाइम अब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि इट इज एन एंड रिजल्ट ऑफ समथिंग, वी वुड नो कि ये प्रोसेस में इसका मतलब कुछ भी नहीं था, इट केम इनटू बीइंग एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. ये कम्युनिकेट करती है ये लाइन, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर विल नॉट फॉल फॉर दिस. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. आई थिंक वी लेफ्ट विद 2 क्वेश्चंस ओनली.
तो ये पर्टिकुलर अभी जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन स्ट्रगल टू मोबिलाइज सपोर्टर्स फ्रॉम अलाइड मूवमेंट्स इन देयर एफर्ट टू अचीव क्रिटिकल मास। अलाइड मूवमेंट का मतलब ये हो गया कि आप ये समझ लो कि एक पर्टिकुलर अगर आंदोलन चल रहा है नर्मदा बचाओ, तो भाई अब नागपुर में अगर आप देखोगे तो पेरेंट्स हैव बीन गोइंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट दिस पीस कट एंड एवरीथिंग, कुछ भी ऑनलाइन क्लासेस मत तो छोटे बच्चों को, तो यहाँ पे ये एक अलग अलाइड मूवमेंट चल रहा है। तो सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ये इस तरह के लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाती है टू अचीव अ क्रिटिकल मास, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। Now, organizations with hybrid identities, those whose organizational identities span the boundaries of two or more social movement issues or identities, are vital to mobilizing these constituencies. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हाइब्रिड होती है नेचर में, जो कई सारी चीजों पे कई सारे मुद्दों पे काम करती है, उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है कि इसको क्रिटिकल मास को मोबिलाइज करना, मतलब दे कैन गैदर बिग नंबर्स, इज व्हाट दे ट्राइंग टू से। The studies of the post 9/11 US anti-war movement show that individuals with past involvement in a non-anti-war movement are more likely to join hybrid organizations than are individuals without involvement in non-anti-war movements. तो यहाँ पे उन्होंने फिर से वही बताया कि भाई अलाइड एरिया से हाइब्रिड में आने का जो है, तो जिनका एंटी वॉर के साथ में विद पास्ट इन्वॉल्वमेंट इन नॉन एंटी वॉर मूवमेंट्स में जो लोग रहे होंगे, तो वो लोग इसके साथ में जुड़े, क्योंकि अब ये उनके लिए नया मुद्दा हो गया। जो एंटी वॉर वाला जो मिशन है ये उनके लिए नया मुद्दा हो गया। तो ऐसे लोग जो कभी एंटी वॉर मिशन में नहीं जुड़े लेकिन दे वर एसोसिएटेड विद अदर सच इवेंट्स, उनके लिए नया मुद्दा हो गया। तो ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे ज्वाइन करना लाइकली है इनका, ठीक है। In addition, they show that organizations with hybrid identities occupy relatively more central positions in inter-organizational contact networks within the anti-war movements and thus recruit significantly more participants in demonstrations than do non-hybrid organizations. तो यहाँ पे ये लेकिन दिखा रहा है कि उनका अगर एक पर्टिकुलर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेंगे एक पर्टिकुलर मूवमेंट का, उसके अंदर उनका इंटर कनेक्शंस एंड जो नेटवर्किंग स्ट्रेंथ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है as compared to the non-hybrid organization जो particular area में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, when they connect strongly and therefore they are able to mobilize the crowd in larger numbers, which is not present in the non-hybrid organizations. हमारे ऑप्शन ये है। ओके, ये आंसर ऑप्शन 1 हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं वैसे? What is a good reason? Example. Sir, actually, there's a big confusion between 1 and 3. I mean, I was very confused whether to type 1 or 3 because both are going similarly. I mean, both are mentioned in the paragraph. I mean, this is the post is like the middle one of this, like the paragraph, the middle line forming. So there's a big dilemma. बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ पॉइंट इज, अगर हम इसको देखें स्टार्टिंग से, अगर आप एनालाइज करो तो हमारा पैराग्राफ का सेंट्रल थीम क्या लगता है आपको? व्हाट इज इट दैट वी लार्जली डिस्कसिंग? Hybrid organizations. Hybrid versus non-hybrid organization, and that they are able to mobilize crowd for the critical this movements basically or in larger numbers, and what are the reasons. Now वो चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक हमने एग्जांपल लिया पोस्ट 9/11 का। सो नेचुरली 9/11 इज एन एग्जांपल, और हम पहले से बोल रहे हैं कि एग्जांपल्स हमारे इसमें नहीं आएंगे, तो उस ग्राउंड पे मैं स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, because it is stating an example, it is showing a study that helps to establish this act further कि अगर अभी ऐसा हुआ है तो इसमें क्या देखने मिलेगा based on the argument that they're building. So this becomes an example, और इसीलिए A वाला जो चीज है वो यहाँ पे रिजेक्ट होगा, ठीक है। 4 is more generic in nature, जहां पे आप organizations with hybrid identities are able to mobilize individuals with different point of view, because they have a different point of view, that's the reason they have been participating in other movements and allied movements, not the similar ones, और इसीलिए ये उनको mobilize कर पाते क्योंकि उनका point of view जो होता है वो different होता है from the current thing। और इसीलिए हमने बोला है कि नॉन एंटी वॉर मूवमेंट में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसके चांसेस ज्यादा है अभी।
क्यों? क्योंकि नॉन एंटी वॉर मूवमेंट में वो थे, तो नेचुरली उनका जो अभी व्यू पॉइंट होगा दैट वुड बी डिफरेंट. इट वुड नॉट अलाइन विद द पीपल हु आर इनटू दिस एंटी वॉर मूवमेंट राइट नाउ. जो नॉन एंटी वॉर मूवमेंट वाले लोग हैं, दे आर लाइकली टू ज्वाइन हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे लोग जो एंटी वॉर मूवमेंट में पहले काम ही नहीं किए, तो नेचुरली उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रहेगा. You can't say that it will align with people who are already working in this particular direction. So इसलिए ये यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी से और एक जनरलाइज टर्म में हमको बताया जा रहा है कि हाइब्रिड आइडेंटिटीज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, they are able to mobilize individuals with different point of view, which clearly means कि allied branches में जो लोग काम कर रहे हैं, they all come to hybrid organization. I mean, they are likely to come to hybrid organization, which is not the case with the organizations that work for social movements. इसका मतलब भाई, if I am CRY, Child Relief and you or whatever it is, now the point is, अगर मैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हूं तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक बड़ा मॉब गैदर कर पाऊं अपने एवेन्यू से बाहर जाकर. Because I am not hybrid in nature, I have one specific purpose and I have a drive that works only in that direction. तो ये चीजें हो जाती हैं यहाँ पे. वहीं पे अगर हम देखें, there will be this say organization that works for the protection of the underprivileged people. Now, under this particular purview, there are a lot of issues that will be covered, not just one. तो ये अलग अलग ग्राउंड्स पे आ जाएगा इसके अंदर. इसमें एजुकेशन भी आ जाएगा, इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आ जाएगा, इसमें जॉब में इक्वालिटी भी आ जाएगा, इसमें एवरीथिंग विल कम. तो ये हाइब्रिड हो जाता है. अब इसका जो पर्पस हो जाता है, बिकॉज दे आर एड्रेसिंग टू मेनी थिंग्स. तो ऐसे में उसको मोबिलाइज कर पाना ज्यादा आसान हो जाता है. समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन में, बिकॉज वो एग्जाम्पल दिया है स्पेसिफिक, इसलिए वी नॉट गोइंग विथ वन. अदरवाइज उसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है. इट्स एन एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन. ठीक है. वाले में देखिए, नॉन एंटी वॉर मूवमेंट गाइज आर लाइकली टू ज्वाइन, जबकि इसने बोला कि दोज हु वर डीपली इन्वॉल्वड इन एंटी वॉर मूवमेंट्स आर द वंस दैट विल बी अट्रैक्टेड. तो ये टोटली डिफरेंट चीज बात कर रहा है, एकदम ऑपोजिट बात कर रहा है सेकंड वाले इसमें. इसलिए सेकंड 100% हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. थर्ड वाले में देखो बहुत बड़ा कैच है. अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा. मूवमेंट्स दैट वर्क टुवर्ड सोशल चेंज, ये कहीं पर भी हमारे इसमें दिया हुआ नहीं है. इट इज द ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क फॉर सोशल चेंज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस दैट ड्राइव द मूवमेंट फॉर सोशल चेंज. हम उनकी बात करें. इसको मैं दिखाता हूं आपको बैक करके. देखिए, सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ये. मूवमेंट दैट आर फॉर सोशल चेंज की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे. We are talking about the organization that is running some social movement. This is exactly what I said कि जहां पे देखो ये हमको सिमिलर वर्ड्स हम दिखते देखकर उसमें ट्रैप हो जाते हैं. हमको लगता है सेम चीज ही बता रहा है. सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन स्ट्रगल टू मोबिलाइज एंड मूवमेंट इन्वॉल्विंग सोशल कॉज. अब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. दोनों चीजें एकदम भिन्न है, एकदम डिफरेंट है. You can't relate A with B directly saying कि A maps to B. बिल्कुल नहीं होगा. ये समझ में आएगा तुमको? Yes. ये जो हमने क्वेरी रेज की कि वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन, आप तो यहाँ मूवमेंट की बात कर रहे हो. वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर सोशल मूवमेंट. तो सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये मेरा ओरिजिनल है चीज, वहां रेफरेंस जो मुझे यहाँ गैदर करना है. बट दिस इज चेंजिंग द मीनिंग नाउ. ठीक है. और इसीलिए डी में हमको सब कुछ ठीक दिखता है, वहां कहीं कोई इशू नहीं है. सो डी शुड बी द एडेक्वेट चॉइस. यहाँ तक सब क्लियर है? हेलो. हाँ, कुछ डाउट है किसी को? सर. यस सर. बोलो. सर ये डी में मतलब सारे पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं ना, तो समरी में सारे जरूरी पॉइंट्स नहीं है कि सारे पॉइंट्स सारे हेलो. पॉइंट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि हम समरी कर ही नहीं रहे. दैट बेस्ट कैच ऑफ द पैराग्राफ ये हम देख रहे हैं.
captures the essence तो कैसे हाइब्रिड हो पाता है ज्यादा क्राउड को और नॉन हाइब्रिड नहीं कर पाते, ये मेन मुद्दा है। उसके लिए फिर हम उसमें एग्जांपल वो ले रहे हैं कि 9/11 स्टडीज बता रही है कि कैसे उस समय जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो जो लोग नॉन एंटी वॉर मूवमेंट के हिस्से थे they are likely to move here based on the observation that they're bringing out that hybrid organization mobilize larger crowd especially from the allied movements। तो मेन मुद्दा हमारा इसका चल रहा है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन का, और ये पूरा का पूरा एसेंस है आपके पैराग्राफ के डिस्कशन का कि हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट व्यू पॉइंट के लोगों को अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो लोग अलाइड मूवमेंट में काम किए रहते जो इधर आके ज्वाइन करते हैं, पर वही सोशल मूवमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो गैदर नहीं कर पाते ज्यादा लोगों को बिकॉज वो उनका दायरा लिमिटेड है, जितने लोग उनसे जुड़े उसी के अंदर उनको काम करना होता है। ठीक है, इसलिए डी जो है वो हमारा एसेंस कैप्चर करना है, हमको पूरी समरी नहीं करना है। सो इट इज बेस्ट कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, दैट इज वन। दूसरा चीज मुझे यहाँ ये देखना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट है जहां मुझे रिजेक्शन या कोई चीज वॉइड एंड नल दिखती है या कोई चीज ऐसी जो मुझे अनएक्सेप्टेबल है मेरे रूल्स के हिसाब से समरी। वन में मैं क्लैरिटी से बोल रहा हूँ कि इट इज एन एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन, आप उसको नहीं ले सकते, दैट कैन नॉट बी योर समरी और एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ पैराग्राफ बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल। बात खत्म हो गई। बी में हम बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा ये ट्विस्टेड है, ये एंटी वॉर मूवमेंट वाले लोगों की बात कर रहा है जबकि पैराग्राफ नॉन एंटी वॉर मूवमेंट के लोगों की बात कर रहा है। टोटली ट्विस्टेड है, पूरा का पूरा डिफरेंट ओपिनियन है। बी कभी भी राइट नहीं हो सकता। सी वाला चीज मूवमेंट की बात कर रहे हैं जबकि हम बात ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता करेक्ट, आप कैसे भी जस्टिफाई कर लो। अब अगर मेरा ए बी सी रिजेक्ट हो गया तो डी में मुझे रिजेक्ट करने के लिए कुछ नहीं दिखता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बेस्ट समरी या बेस्ट वे होगा उसको कैप्चर करने का, बट गिवन 4 ऑप्शंस मुझे उसमें से बेस्ट अगर सिलेक्ट करना है तो मेरा आंसर ऑप्शन डी रहे, because I am going even by the elimination method and not necessarily by the selection method। जब कोई ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूं कॉन्क्रीटली बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस कि भाई इसके इफेक्ट में ये नहीं आएगा, तो वो बात वहां खत्म हो जाती, फिर देन आई एम नॉट रिकंसिडरिंग। तो ऐसे रिजेक्ट करते करते मेरे पास तीनों रिजेक्ट हो गए, मेरे पास चौथा ही बचता है जहां पे मेरे पास रिजेक्शन के लिए कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे आप मुझे बताएं इसमें क्या आपको गलत लग रहा है फोर्थ वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, आर वी गुड विद दिस? अभी हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, चलिए। ओके, so got variable answers again। So answer option 1, let us see। Wall-free office spaces did not quite work out as desired and therefore cubicles came into being। Now obviously we really don't know whom are we talking about। यहाँ पे did not quite work out as desired by whom, कौन है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आप ये समझ के चलो कि you were not present during this discussion और तुमको आके कोई ऐसे बोलेगा कि it did not work out as desired and therefore cubicle came into being, would you not think भाई किसके हिसाब से? आपको पैराग्राफ मालूम नहीं है। See, what you need to always understand, put yourself in that shoe where you not aware about the paragraph, और फिर देखो कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अगर उतना तुमने सुना तो तुमको पूरा कंप्लीट मिल रहा है क्या इन्फॉर्मेशन, और इज इट लिविंग यू विद सर्टेन ओपन एंडेड क्वेश्चन कि भाई ये क्या है, वो क्या है, ये किसकी बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। Now that should not happen because otherwise वो कैप्चर कैसे होगा पूरा एसेंस। तो यहाँ पे ये बहुत एम्बिगुअस है कि डिड नॉट वर्कआउट एज डिजायर्ड बाय हुम, क्योंकि हमने तो वहां पैराग्राफ में कंपनी की बात की, हमने आर्किटेक्ट्स की बात की, हमने ये यूटोपियन इन्वेंटर्स की बात की, तो भाई किसकी हम बात कर रहे हैं। So this is very ambiguous and therefore this cannot be something that I would like to go with। Second जो ये बोल रहा है quite work out their inventors intended as they became tools for exploitation of labor, ये कुछ हद तक के हमको ठीक लग रहा है बिकॉज कंपनीज ने जो है वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज और उसके बारे में नहीं सोचते हुए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए देखा कि कितने ज्यादा लोगों को हम इसमें बैठा सकते हैं टू आवर एडवांटेज,
So naturally that targets is directing towards exploitation of labor. The very clear direction that we getting that it was towards the exploitation of labor. So 2 हमको वैसे सही लग रहा है, but we will like to read ahead. 3 में देखो, wall free office could not work out the way their utopian inventors intended had companies cared for workers satisfaction. Now the point is भाई कंपनी अगर उनके satisfaction के लिए सोचती तो, now this is the idea that might look good for a further argument कि ये ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, बट मेरे पैराग्राफ में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया. मेरा पैराग्राफ इतना ही बोलता है कि कंपनी ने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की. अभी आगे की बात होगी कि अगर कंपनी भले के लिए सोचती उनके तो क्या हो सकता था. So therefore, I don't think this can be something that would capture the essence of it, because ये थोड़ा हम आगे जाके फ्यूचर की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, pertaining to my paragraph. Don't believe in democratic ideology. ये दिया है क्या कहीं पर हमको कि कंपनीज डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी? उन्होंने ये बोला है कि डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था वो फॉर्मेट को, but that does not mean that they don't believe in democratic ideology. It was not for this reason that they selected. They could be believing in this, but they did not select it for this reason. And hence when you're saying that they don't believe in democratic ideology, now that is definitely a different statement. It is not mentioned in my paragraph. एक बार फिर पढ़ो उसको. यहाँ पे देखो, but companies took up their ideas less out of a democratic ideology than a desire to pack in as many workers as they could. तो ये सेंटेंस मुझे ये नहीं बोलता है कि कंपनीज डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते. कंपनी ने जब सिलेक्शन किया तो उसका बेसिस डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी नहीं था. इज ऑल दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट नोवेयर गिव्स मी दैट इंफॉर्मेशन दैट दे वेर against democratic ideology or that they did not believe in democratic ideology. Now that is not mentioned here. This is what is called distortion of idea. एक सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो काफी मिलती जुलती चीज लगती है, बट इसको मैं डिस्टॉर्शन ऑफ आइडिया बोलता हूँ बिकॉज ये मीनिंग चेंज कर दे रही है हमारा टोटल यहाँ. और यही वो चीज है जिसको हमको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, देखना है, ताकि यहाँ गलतियां ना हो. ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सारा का सारा वीएस सेक्शन. ट्रस्ट मी, आप अगर परसिस्टेंट एफर्ट्स लेते हो और क्रिटिकली सोचते हो हर क्वेश्चन पे, धीरे धीरे आपकी सोच ऐसी डेवलप हो जाएगी कि वो जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस हम चाहते कि आप करो वो अपने आप होने लग जाएगा. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट सून वी कैन अचीव दैट पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पे हमारा करेक्शन रेट कुड बी एज हाई एज अबाउट 80-90%. और वही हमको मेंटेन करना है अगर हमको आईएम्स में जाना है, कि हमारी जो एक्यूरेसी रेट है दैट हैज टू गो अप. ठीक है. So this is all for today's session on para summary. तो मुझे लगता है कि this probably would have helped in terms of developing or unwinding many of those ideas that you thought were not clear, were hazy in mind. इन 6 क्वेश्चन से शायद काफी कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा, और मुझे लगता है इसका बेसिस बनाकर अब फ्रेश माइंड से आप नए क्वेश्चंस को अप्रोच करो पैरा समरी के, जो आपके बुक्स में है, जो एक्सरसाइजेस में है. I am sure and confident that you would feel that those questions are more comfortable to manage now. तो एक बार उसको अप्रोच करो, और जैसा हमने प्रॉमिस किया है ये चीज अभी कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे ऐसे ही. अब the only catch here is that next week में, as Rahul sir also would have told you, that we will like to deal with institute selection seminar का series, जिसमें NMAT, SNAP and maybe one of the allied exam, CET, and then we will talk about CAT, ZAT and other exams. इसके 2 या 3 सेशंस में हम इसको स्प्लिट करेंगे, and we will see based on our scores कि हमको कौन से colleges को target करना चाहिए. Now based on our score would mean what is scoring in your MCATs. So that will become a basis for us to decide कि कहाँ हमको apply करना है. ठीक है, तो अगले इसमें वो करेंगे, और जहाँ पे भी हमको गैप मिलती है अर्लीएस्ट, we will also like to have one session on para completion, because वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपकी प्रेप का. और हो सकता है कि अभी हमने देखा लास्ट ईयर नहीं आया, लेकिन आने वाले साल में पैरा कंप्लीशन पे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इट शुड नॉट सो हैपन कि वी नॉट प्रिपेयर्ड.
सो हम पैरा कंप्लीशन का भी एक वर्कशॉप लेंगे जहां पे पास्ट ईयर के कैट के क्वेश्चन, सो लास्ट 5 years में जो भी कैट के क्वेश्चन आए होंगे, आई विल कलेक्ट दोज क्वेश्चंस एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑफ दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. लेट्स कॉल इट अ डे. थैंक यू वेरी मच. कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू. वेलकम. Thank you, sir. वेलकम. Thank you, sir. वेलकम.